A very good morning to all of you. In today's session, I am going to discuss the numericals based on Kulrauch's law, the electrochemistry portion. Okay, so I have included all the previous year questions based on Kulrauch's law. In today's session, I will discuss you a very simple shortcut trick to calculate the molar conductance at infinite dilutions for electrolytes based on Kulrauch's law. Okay, so let us start today's session. So first of all, I would like to remind you all the formulas in electrochemistry portions I have already discussed in our previous video. So first term is specific conductance. So specific conductance is defined as the reciprocal of the specific resistance, that is kappa equal to 1 by R into L by A. L by A is known as cell constant. Cell constant is defined as the ratio of length to the area. Okay, or in other words, cell constant may also be defined as a specific conductance divided by conductance, or specific conductance into resistance. I have already discussed the numericals based on these formulas in my previous videos. So cell constant can be written as specific conductance into resistance. So in most of the numericals, specific conductance is given, resistance is given, so you have to ask to calculate the cell constant. So cell constant can be easily calculated by multiplying the specific conductance with resistance. Now molar conductance is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte. It is written as lambda m. So molar conductance is related to specific conductance by this formula. So molar conductance equal to kappa, that is specific conductance, into 1000 by molarity. In the same way, equivalent conductance is defined by the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte. So it is written as lambda equivalent. So it is related to specific conductance by this formula, where lambda eqv is equivalent conductance equal to specific conductance into 1000 by normality. Capital N is normality. ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम इस पे सारे फॉर्मूलेस को, कॉन्सेप्ट को वीडियो ऑलरेडी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Kulrauch's law. So according to Kulrauch's law, at infinite dilutions, each ion makes a definite contribution towards molar conductance irrespective of the nature of their counterpart ion. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या आता है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड. देखिए इसका भी मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है वीडियो में. सो प्रॉब्लम ये था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका ग्राफ जो आता है वो एक्सपोनेंशियल आता था. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाल सकते थे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं निकाला जा सका. उसी के लिए आता है कुलराउच लॉ. तो कुलराउच ने क्या सिंपली क्या कहा था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन बाय इट्स केटायन एंड एनायन. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो इसके केटायन क्या लेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड. जैसे वो एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली HN चाहिए और एसिटेट आयन चाहिए. इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो देन वी विल गेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड. सिमिलरली MgCl2, तो हमें इसमें मैग्नीशियम 2 प्लस 2 into Cl माइनस, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका यहाँ में ठीक है पर मोल के लिए होता है, तो ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, हमें उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है. इन द सेम वे एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे तो 2 into एल्युमिनियम प्लस 3 into सल्फेट. ठीक है, सोडियम एसिटेट का लिखेंगे तो सोडियम प्लस एसिटेट. तो कुलराउच लॉ का वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जनरली 2-3 तरह का न्यूमेरिकल है. फर्स्ट ये कहेंगे कि आपको आयंस की वैल्यू देगा तो आपसे इलेक्ट्रोलाइट्स पूछेगा. ठीक है ना, जैसे कुछ मान लीजिए आपको एल्युमिनियम की वैल्यू दिया हुआ है, सल्फेट की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का निकालो. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कुलराउच लॉ पहले इसको एक्सपेंड करेंगे. सो 2 into lambda m infinitive और 0 फॉर एल्युमिनियम प्लस 3 into lambda m infinitive सल्फेट. तो जनरली हम न्यूमेरिकल में गलती क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो पर मोल के लिए है. हमें एल्युमिनियम कितना दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में 2, सल्फेट कितना है 3, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई
करना है। देन बाकी आपको वैल्यू दिया रहेगा, किसी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको ये होता है कि आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, किसी एक का पूछेगा, तो उसके लिए सीधा सीधा आपको एक शॉर्टकट बताएंगे अभी आगे न्यूमेरिकल्स आएगा। तो किसी भी 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू गिवन होगी, कोई एक आपसे पूछेगा, तो वहां से हम उसको निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन कोलराउच लॉ, ठीक है। सो थ्योरी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम यहाँ में इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बोर्ड के लिए, क्लास 12 क्लास के लिए, बीएससी के लिए और इवन नीट के लिए, जेई के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। यहाँ से सीएसआईआर नेट में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ में लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। If the molar conductance at infinite dilution for magnesium ion and sulfate ion are 106 and 160 Simon centimeter square mole inverse। तो आपको यहाँ में क्या मैग्नीशियम सल्फेट का पूछ रहा है, मैग्नीशियम आयन का और सल्फेट आयन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ, सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम आयन प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन की वैल्यू कितना दिया 106, सल्फेट आयन की वैल्यू कितना दिया 160, दोनों को ऐड कर दीजिए टू 66, सीधा सीधा। सो आयंस की वैल्यू देगा तो हमसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो नो प्रॉब्लम, आयंस की वैल्यू को रख दीजिए, उसमें सॉल्व कर दीजिए। बस ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स, बट यहाँ में मैग्नीशियम 1 है, सल्फेट भी 1 है, इसलिए 1:1 सीधा सीधा ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो ये AITPL का क्वेश्चन है। तो कैल्शियम +2 की वैल्यू इज गिवन, क्लोराइड आयन की वैल्यू गिवन, बट यहाँ में देखिए फॉर्मूले को देखिए CaCl2, तो रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, कैल्शियम इज 1 AxBy करके यहाँ में, और यहाँ में क्या है 2 क्लोराइड है, इसलिए अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ लिखेंगे तो 1 कैल्शियम 2 प्लस आयन जरूरत नहीं, +2 इंटू Cl माइनस, Cl आयन की वैल्यू दिया हुआ है, कैल्शियम की वैल्यू दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया तो आपको मिल गया CaCl2, ठीक है। सो आयंस की वैल्यू देगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, नो प्रॉब्लम, हमें किसी भी आयंस की वैल्यू याद नहीं करना है कि सल्फेट का कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, क्लोराइड का कितना है, वो आपको गिवन रहेगा, वो आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The value of molar conductance at infinite dilution of aluminum sulfate is 858 Simon centimeter square mole inverse, while for sulfate ion is 160 Simon centimeter square mole inverse. Calculate the limiting ionic conductivity of aluminium 3+। यहाँ में आपको क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू गिवन है, सल्फेट की वैल्यू गिवन है, हमसे क्या पूछ रहा है एल्युमिनियम आयन, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ वी कैन राइट एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, नो डाउट यहाँ में 2 एल्युमिनियम है, तो 2 इंटू एल्युमिनियम 3+ प्लस सल्फेट कितना है 3, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में SO4 का होल प्राइस इंटू लैम्डा एम इनफिनिटी सल्फेट 2 माइनस। अब देखिए आपको यहाँ में एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू इज गिवन 858 रख दिया, एल्युमिनियम की वैल्यू नहीं दिया रख दिया, आप लेटस मान सकते हैं कि x है बट ऐसे रहने दिया, +3 इंटू सल्फेट आयन की वैल्यू इज गिवन कितना दिया 160, इस 160 को यहाँ रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 480, इसको इधर लाके माइनस किया, ये हो गया 378, बट ये 378 किसका आ रहा है 2 का आ रहा है, हमें क्या निकालना है सिर्फ एक एल्युमिनियम का निकालना है, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम के लिए कितना हो गया डिवाइडेड बाई 2 189। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा सोचिए कि अगर आपका सल्फेट दिया होता है एल्युमिनियम देता तो हमसे क्या पूछता एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। सो कहीं कहीं आपको कैल्शियम फास्फेट का भी क्वेश्चन है, कैल्शियम आयन देगा फास्फेट आयन देगा, तो कैल्शियम फास्फेट दिया होता तो आयंस का पूछता, ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एग्जांपल 4। अभी अब आपको यहाँ में क्या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो मैंने किया उसमें क्या था आयंस की वैल्यू देगा तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, बट यहाँ में क्या आपको है इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया हुआ है और एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा। देखिए मोलर कंडक्टेंस एट सोडियम क्लोराइड HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.45, 426.16, 91 Simon centimeter square mole inverse respectively at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दे दिया 126.45, HCl की वैल्यू दे दिया 426 समथिंग, सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे दिया 91,
अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लैम्डा m इंफिनिटी फॉर एसिटिक एसिड। No doubt acetic acid is a weak electrolyte, so we cannot determine its molar conductance by extrapolation method। ठीक है ना, उसी के लिए हमें क्लोराउच लॉ की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से लगा सकते हैं। एक आपको देखिए जो दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया है, हमें क्या चाहिए एचाइन और एसिटेट आयन, ये हमें निकालना है। आपको गिवन है HCl, HCl को हम लिखेंगे तो क्या एचाइन प्लस Cl माइनस, NaCl is given sodium ion plus Cl ion, no problem according to Clausius law। सोडियम एसिटेट भी दिया है तो N सोडियम प्लस प्लस एसिटेट माइनस। अब हमें क्या निकालना है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के दो पार्ट है, एक उसका केटायन एचाइन और एक उसका एनायन CH3 माइनस एसिटेट। तो एचाइन प्लस एसिटेट आयन। अब हमको कहीं से भी एसिटेट आयन की वैल्यू मिल जाए, एचाइन की वैल्यू मिल जाए, उन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एसिटिक एसिड। क्लोराउच ने ही कहा सिंपली, ठीक है। बट अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या है HCl दिया है ना, तो एचाइन और Cl इन दोनों को अगर हम कपल करें, इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा HCl। इसलिए हमने यहाँ में क्या किया अपनी तरफ से Cl को ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों मिलके हमें क्या देगा HCl। एसिटेट आयन आपको कहाँ में है सोडियम एसिटेट के साथ वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सोडियम के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा सोडियम एसिटेट एज पर क्लोराउच लॉ। बट हमें निकालना एसिटिक एसिड का है, तो एसिटिक एसिड में ना तो क्लोराइड आयन है ना ही सोडियम प्लस आयन है, जिसको हमने अपने तरफ से ऐड किया था, तो इसलिए हमने इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीस टू। अब ये दोनों को हम एक साथ ऐड कर ले माइनस कॉमन करके, तो ये हमें क्या दे देगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू HCl प्लस सोडियम एसिटेट माइनस NaCl। तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, रख के सॉल्व कर दीजिए। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हमें करने नहीं है। उसके लिए आपको शॉर्टकट क्या है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपको निकालना है उसमें दो ही आयन होते हैं, एक उसका कैटायन और एक उसका एनायन। जो आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा उसमें देखिए कौन सा आयन कॉमन है, ठीक है। जैसे आप ध्यान दें एसिटिक एसिड हमें निकालना है, इसका दो काउंटर पार्ट क्या है, एक एचाइन और एक एसिटेट आयन। एचाइन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है HCl में, ठीक है, और एसिटेट आयन कहाँ दिखाई दे रहा है सोडियम एसिटेट है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस कर देना है, ठीक है। और जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, देख लें आप सोडियम क्लोराइड ना तो आपको इसमें कहीं Na है ना ही आपको इसमें Cl है, तो इसको क्या करना है माइनस कर देना है। तो सीधा सीधा आप शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे बोर्ड के लिए चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो इसमें आपको कोई भी तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, इसमें से एक हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है कि जो आयन कॉमन है उन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। या चलिए ये भी जो भूल जाइए कि किसको ऐड करना है, सीधा सीधा जो कॉमन नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि इन तीन इलेक्ट्रोलाइट्स में से हमें निकालना है किसका एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड में क्या है एसिटेट आयन चाहिए हमें और एच आयन चाहिए एज पर क्लोराउच लॉ। एसिटेट आयन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सोडियम के साथ, एच आयन कहाँ में दिखाई दे रहा है HCl के साथ, इसलिए इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा इन दोनों की वैल्यू को। सोडियम क्लोराइड में कोई भी आयन कॉमन नहीं है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना हम यहाँ से कट कर दे तो देखिए सीधा सीधा हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। सो एज यू विश, आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, कहीं का भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं, कोई वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, AIEEE का क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। सोडियम बेंजोएट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 82.4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है 426.2 एंड सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दिया है 126.5। यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट लैम्डा 0 फॉर बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए किस आयन को हमें प्लस करना है किसको माइनस करना है, बोलिए। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है C6H5COOH। सो बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया ये COOH, मतलब आपको दो आयन चाहिए, हमें कहीं से भी बेंजोएट आयन चाहिए और एक यहाँ में H प्लस चाहिए, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब
यहाँ में आपको HCl दिया है, फॉर्मूला नहीं लिखा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। बेंजोएट और सोडियम, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ में क्या है NaCl। अब बोलिए किसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, 2 आयन चाहिए, बेंजोएट आयन चाहिए और H आयन चाहिए। बेंजोएट आयन कहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और H आयन कहाँ में दिखाई दे रहा है, HCl। ऑब्वियसली इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, और इस सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl इस फार्मूले में जिसको हमें निकालना है, सो बेंजोइक एसिड के फार्मूले में कहीं भी सोडियम नहीं है, कहीं भी Cl नहीं है, मतलब इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। आपको मैंने क्या बोला कि जो कॉमन नहीं है उसको माइनस कर दीजिए आंख बंद करके, तो सोडियम क्लोराइड माइनस कर दीजिए, बाकी दोनों वैल्यू को प्लस कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। तो जो भी आयन में आपको दिया हुआ है जिसका हमें निकालना है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसके 2 पार्ट होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। जो कॉमन है उन दोनों को प्लस करना है, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस कर देना, उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो नो डाउट बेंजोइक एसिड में कोई भी सोडियम या क्लोराइड यहाँ में नहीं है, इसलिए हमें सोडियम क्लोराइड को माइनस करना होगा, बाकी इन दोनों वैल्यू को प्लस करना होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, सो बेंजोइक एसिड इक्वल टू सोडियम बेंजोएट प्लस HCl माइनस NaCl, सीधा सीधा। सो बोर्ड के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिखना होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो बस प्लस माइनस करके ऑप्शन मार दीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए इसका बता दीजिए। सो एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेज ऑफ सोडियम एसीटेट, HCl एंड एसिटिक एसिड आर 91, 426, 391 mole centimeter square respectively at 298 Kelvin. Calculate the equivalent conductance of sodium chloride. हमें सोडियम क्लोराइड का निकालना है, ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सोडियम क्लोराइड का निकालना है। तो सोडियम हमें चाहिए और क्लोराइड चाहिए, सोडियम प्लस Cl माइनस, 2 आयन हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू कोल्डाउट्स लॉ। सोडियम कहाँ में दिखाई दे रहा है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, कॉमन आयन। Cl माइनस कहाँ में है, यहाँ में है, तो इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाते समय प्लस करना पड़ेगा। माइनस किसको करेंगे, एसिटिक एसिड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में ना तो एसीटेट है ना ही आपको H आयन है, ठीक है, ये हो गया माइनस, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, इस 391 को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपको मिल गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई वैल्यू रटने की जरूरत है, बस आपको सिर्फ किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू आपको दिया रहेगा, एक आपसे पूछेगा, ठीक है, तो कोई भी 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया रहेगा, एक हमसे पूछेगा, तो बस यहाँ से हमें निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, equivalent conductances of sodium chloride HCl and sodium C2H5COO Na, sodium ethanoate at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91 Simon centimeter square equivalent inverts respectively. Calculate the equivalent conductance of C2H5COOH, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड का हमें निकालना है, सोडियम प्रोपेनेट का हमें दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, HCl हमें दिया हुआ है। बोलिए अब किसको माइनस करेंगे किसको प्लस करेंगे। जस्ट पिछला क्वेश्चन है, आपको हमें बेंजोइक एसिड था, सोडियम बेंजोएट दिया था, HCl दिया था, NaCl दिया था, फिर यहाँ तो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, C2H5COO माइनस और एक H प्लस। H प्लस कहाँ में दिखाई दे रहा है, HCl, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। C2H5COO कहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, सोडियम के साथ और HCl को प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को, क्लियर। माइनस किसको करेंगे, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो वैल्यू आपको दिया है, प्लस माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो C2H5COOH निकालना है, सोडियम साल्ट इसका दिया हुआ है, प्लस HCl ले लिया, माइनस कर दिया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी सोडियम और क्लोरीन नहीं है, वैल्यू दिया है, प्लस माइनस किया, आंसर मिल गया, गॉट इट, ठीक है। चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स Ba and Ca are 140 and 120 Simon centimeters per mole inverse respectively. If the molar conductance at infinite dilution of Bx is 198, then calculate molar conductance at infinite dilution for Cx. तो ठीक है, आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, Ba की वैल्यू दिया हुआ है, Ca की वैल्यू दिया हुआ है और Bx की वैल्यू दिया हुआ है और हमें इन तीनों से क्या निकालना है, Cx की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब आपको करना है जो आयन कॉमन है उसको प्लस करना है, जो आयन कॉमन नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो बोले किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, C और X हमें दो चाहिए, C कहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में, X कहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे नो डाउट, और माइनस किसको करेंगे, जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है मतलब बी ए, इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया, वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कितना मिलेगा। चलिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl KNO3 एंड सिल्वर नाइट्रेट। सो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है, KCl हमें दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है और सिल्वर नाइट्रेट दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, AgCl हो जाएगा। तो किसको माइनस करेंगे, हमें क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए, क्लोराइड चाहिए, सिल्वर कहाँ में, यहाँ में, क्लोराइड कहाँ में, यहाँ में, कॉमन नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर आप बताइएगा सिल्वर क्लोराइड का कितना आएगा, ओके। चलिए, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NaOH and NaCl are, वैल्यू आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। सो आपको किसका निकालना है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमें निकालना है। हमें अमोनियम क्लोराइड दिया है, NaOH दिया है, NaCl दिया है, और ये किसका वैल्यू को हम प्लस करेंगे, किसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करना है, जो आयन कॉमन है जिस इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें उसको प्लस करना है। तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो किसको माइनस करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और NaOH को हमें प्लस करना है, सोडियम क्लोराइड की वैल्यू को हमें माइनस करना है, क्योंकि इसमें ना तो सोडियम है ना ही क्लोराइड है। सो सिंपल, ये सब AIEEE IIT PMT का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा। तो ये आ गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड मतलब अमोनियम चाहिए और OH चाहिए, यदि अमोनियम चाहिए और OH चाहिए, बट हमें Cl और Na नहीं चाहिए, इसलिए माइनस कर दिया, वैल्यू आपको दिया था, रख के सॉल्व कर दिया, क्लियर। चलिए, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड एंड रुबिडियम आयोडाइड आर 12.7, 10.8 and 9.1 milli-Simon meters per mole inverse. Calculate the limiting molar conductivity of rubidium chloride. इसे SIR नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, रुबिडियम क्लोराइड का निकालना है। तो हमें दो आयन चाहिए, रुबिडियम प्लस और Cl माइनस। रुबिडियम कहाँ में है, यहाँ में है, Cl कहाँ में है, यहाँ में है। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, नो प्रॉब्लम। सोडियम आयोडाइड की वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आप आंख बंद करके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमें क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम फास्फेट, सॉरी पोटेशियम फास्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तीन आयंस की इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू आपको दिया है 160, 140, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम फास्फेट, ठीक है। तो यहाँ में आपको क्या है, देखिए प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट तो वही है, किस जो कॉमन है उसको प्लस करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करेंगे,
ठीक है ना, बट यू हैव टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें क्या निकालना है, बेरियम फास्फेट का निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, बेरियम चाहिए और फास्फेट चाहिए, नो डाउट। बेरियम कहाँ में, यहाँ में, फास्फेट कहाँ में है, यहाँ में है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू को प्लस करना है। देखिए बेरियम क्लोराइड और फास्फेट की वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है। माइनस किसको करना है, जिसमें कोई भी अनकॉमन नहीं है, तो नो डाउट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लियर। बट अब आपको देखिए अगर इसके स्टेटमेटिक रेशियो देखें, हमें बेरियम कितना हमें चाहिए इस फॉर्मूले से, दैट इज फिक्स। बेरियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स है, तो बेरियम आपको कितना दिखाई दे रहा है 3, फास्फेट यहाँ में कितना है 2, बट यहाँ में बेरियम कितना है, सिर्फ 1 मोल है, BaCl2 1, बेरियम यहाँ 1 है, बट हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, ठीक है। फास्फेट हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, देखिए PO4 का होल ट्वाइस है, बट कैल्शियम फास्फेट में फास्फेट कितना है, सिर्फ 1 यूनिट है, इसलिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो फास्फेट तो 2 हो गया, बट पोटेशियम कितना हो गया 3 2 6, तो पोटेशियम भी 6 हो गया, 3 2 6, क्लोराइड भी 6 हो गया, बट KCl में सिर्फ एक ही पोटेशियम है, एक ही क्लोराइड है, इसलिए इसको भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, वो तो आप देख के पता कर लेंगे आप, नो प्रॉब्लम, बट उसको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो जब आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वैल्यू किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक बेरियम क्लोराइड हमें सिर्फ एक ही बेरियम दे रहा है, बट हमें इस फॉर्मूले से कितना चाहिए 3, इसलिए इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 into 160 plus 2 into 140 minus 6 into 1 KCl दिया हुआ वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, ये मिल गया, ठीक है। The molar conductivity is at infinite dilution for sodium sulfate, potassium sulfate, KCl, HCl and sodium formate are at 300 Kelvin are 260, 308, 150, 426 and 105 7 centimeter inverse mole inverse respectively. Hence calculate the molar conductance at infinite dilution for formic acid, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCOOH। तो यहाँ में थोड़ी एक टेक्निकल कि आपको फॉर्मूला नहीं दिया है, नाम दे दिया है, ठीक है। ये CSIR नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फार्मिक एसिड हमें निकालना है, फार्मिक एसिड का हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो अब आपको सोडियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम सल्फेट दिया है, KCl दिया है, HCl दिया है और सोडियम फॉर्मेट दिया है। तो फार्मिक एसिड के हिसाब से हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, एक एचाइन चाहिए और एक फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट कहाँ में दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट, ठीक है। तो सोडियम फॉर्मेट और एचाइन कहाँ में दिखाई दे रहा है HCl, इन दोनों वैल्यू को हमें प्लस करना है, क्लियर। बट यहाँ से सोडियम और क्लोरीन, इसलिए हमें NaCl को भी माइनस करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। सो HCl को ऐड करना पड़ेगा, सोडियम फॉर्मेट को भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वहां से हमें NaCl को माइनस करना पड़ेगा। बट आपको क्वेश्चन में कहीं NaCl नहीं दिया है, सो दैट इज टेक्निकल पॉइंट, वही एक क्वेश्चन में इसका, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या दिया है, सोडियम सल्फेट दिया है, पोटेशियम सल्फेट दिया है और KCl दिया है। अब सोचिए सोडियम क्लोराइड की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, सोडियम कहाँ में, यहाँ में है, ठीक है। और दूसरा क्या Cl चाहिए, Cl कहाँ में, यहाँ में। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे पोटेशियम सल्फेट को, बट यहाँ फॉर्मूला में 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में सिर्फ एक ही सोडियम है, ठीक है ना। तो इसलिए पहला काम हमें क्या करना है कि आपको एक ही काम को 2 बार करना है इस क्वेश्चन में, बस ये इसका टेक्निकल पार्ट है। अगर NaCl की वैल्यू दिया होता तो फिर हम सो सिंपल क्वेश्चन जैसे पीछे किया, बट यहाँ में आपको सोडियम क्लोराइड नहीं दिया है, उसको निकालने के लिए, सोडियम क्लोराइड निकालने के लिए आपको 3 और इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो एक ही काम को 2 बार कर दीजिए, ऐसे जो मिसिंग है सोडियम क्लोराइड उसकी वैल्यू को भी हमें निकालना है, और वो सोडियम क्लोराइड की वैल्यू निकालने के बाद तब हमको फॉर्मिक एसिड का निकालना है, ठीक है ना।
इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक ही काम को, उसी कॉन्सेप्ट को 2 बार अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मिक एसिड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम फॉर्मेट और HCl प्लस NaCl। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें NaCl की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया है। अगर NaCl की वैल्यू दिया होता तो फिर हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब NaCl की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, KCl और पोटेशियम सल्फेट। नो डाउट पोटेशियम सल्फेट को तो माइनस करेंगे, ये तो समझ रहे हैं, ठीक है, बट इसकी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में आपको 2 सोडियम है, सल्फेट एक ही है, ठीक है, यहाँ 2 पोटेशियम है। फॉर्मूला देखिए K2SO4 2 पोटेशियम, बट यहाँ में एक ही पोटेशियम, यहाँ में 2 सोडियम, बट हमें कितना चाहिए, NaCl में सिर्फ एक ही सोडियम, तो इसलिए इसको बैलेंस करने किया, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि सोडियम सल्फेट प्लस 2 KCl प्लस माइनस K2SO4 निकालेंगे तो उससे हमें यहाँ में 2 वैल्यू आएगा, 2 टाइम्स आएगा, उस 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे फॉर्मिक एसिड के लिए। तो सोडियम फॉर्मेट की वैल्यू इज गिवन 105, HCl की वैल्यू इज 426, NaCl आपको मिसिंग था, वो आपने यहाँ से निकाल लिया 126 405, ऑप्शन सी। ठीक है, सो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा तो एक पूछेगा, नो डाउट। अगर उसमें एक मिसिंग है तो उसके लिए हमें और 3 वैल्यू देगा, इसलिए आपको यहाँ में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया था, क्योंकि एक हमारा मिसिंग था, सोडियम क्लोराइड में नहीं दिया था, वो हमने इनडायरेक्टली निकाला। ठीक है, सो हमारा प्रोसीजर वही था, बट सिर्फ यहाँ में एक ही काम को 2 बार करना है। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज 100 ओम्स। तो ये आपको पिछले फॉर्मूला जो पढ़ा था, लेकिन आपको कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.1 मोलर दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया, 100 ओम दिया है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा आपको दिया हुआ है, तो कप्पा दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से आप पहला काम सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ में यूज करना है। ठीक है, so resistance of the same cell when filled with 0.2 molar of the same solution is 520 ohm। अब दूसरे सेल के लिए आपको पूछना है, तो 5 पूछ रहा है मतलब, तो आपको रेजिस्टेंस दिया है 520, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, सेल कांस्टेंट नहीं पता है, सेल कांस्टेंट के लिए आपको 0.1 मोलर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सेम सेल यूज कर रहा है तो इसलिए उसका सेल कांस्टेंट सेम होगा, तो रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, calculate the degree of dissociation of acetic acid if its molar conductivity is 39.05 Simon centimeter square mole inverse। given HN की वैल्यू दिया हुआ है, एसिटेट आयन की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये कोल्डाउस लॉ का एप्लीकेशन सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी में सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% व्हाटएवर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए कोलाउच ने ये फार्मूला प्रपोज किया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम एट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, अब आपको लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए 2 प्रोसेस है, या तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, एक का पूछेगा तो वहां से निकाल लीजिए, या आपको आयंस की वैल्यू देगा, दोनों को प्लस कर दीजिए। क्लियर, मोलर कंडक्टेंस अगर दिया है तो हमारे लिए काम आसान है, नहीं दिया है तो हम पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। ठीक है, सो कोई एक कैलकुलेशन आपसे कराएगा, बाकी हमें फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। देखिए, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा निकालना है, एच आयन हमें दिया हुआ है, एसिटेट आयन हमें दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कोल्डाउच लॉ हमने इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट निकाल लिया, दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया तो 90 आ गया। ठीक है, if its molar conductivity is already given 39.05, ये आपको दिया हुआ है, सो मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, एट इनफाइनाइट हमने निकाल लिया क्योंकि आयंस की वैल्यू दिया था, अब अल्फा निकल गया, तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। ऑब्वियसली जो वैल्यू ज्यादा होगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है, जो वैल्यू कम होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा।
तो 39.05 डिवाइडेड बाई 390.5 0.1 और 10%। ठीक है, यहाँ में आपको मोलर कंडक्टेंस दिया था, अगर मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया होता तो फिर हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ता। ठीक है ना, चलिए जैसे ये क्वेश्चन, आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वैल्यू फॉर कैल्शियम प्लस 2 आयन इज गिवन, Cl माइनस आयन इज गिवन, तो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2। CaCl2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो कैल्शियम प्लस 2 दिया हुआ है, Cl माइनस दिया हुआ है, CaCl2 आपको निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलाउचला CaCl2 लिख दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए, the molar conductivity of n/10 solution of acetic acid at 25 degree Celsius is, तो molar conductance आपको दिया हुआ है, calculate the degree of dissociation of acetic acid if molar conductivity at infinite dilution is given। तो ये तो पक्का पकाया क्वेश्चन है, दोनों वैल्यू हमें दिया है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। सो मोलर कंडक्टेंस भी दिया हुआ है 14.3, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है 390.71, हमें सिर्फ अल्फा निकालना है, तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटिव रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.66%। ठीक है, तो अगर दोनों दिया है तो जस्ट फॉर्मूले में रख दीजिए। पीछे जो क्वेश्चन किया है, एक लैम्डा आपको दिया रहेगा तो ये आपसे निकलवाएगा, तो इसमें आयंस की वैल्यू देगा। ठीक है, या ये देगा तो फिर हमसे ये निकलवाएगा, तो स्पेसिफिक 1000 बाय मोलर मोलैरिटी। ठीक है, जैसे इसका भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, ये आपको दे दिया कंडक्टिविटी है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हमें इन्फिनिटिव वाला चाहिए, एचाइन की वैल्यू दिया है, एसिटेटाइन की वैल्यू दिया है। तो पहला काम अकॉर्डिंग टू कोल्डाउच लॉ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट निकल गया, क्योंकि एचाइन दिया है, एसिटेटाइन दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया है तो हमें अल्फा निकालना है, तो मोलर कंडक्टेंस भी हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या दिया है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया हुआ है और मोलैरिटी दिया है 0.01। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 0.001, कप्पा आपको दिया हुआ है, दैट इज कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो 3.905 into 10 to the power minus 5 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, तो ये हमें मिल गया 39.05। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टेंस आ गया। मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटी वो आपको एचाइन और एसिटेटाइन के वैल्यू दिया था, वहां दोनों में प्लस कर दिया तो वो मिल गया, अब फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, सो जस्ट आपको पैटर्न को देखना है कि अगर हमें मोलर कंडक्टेंस दिया है, इंफिनिटिव दिया है तो जस्ट डिवाइड कर देना है, मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया है, इंफिनिटिव एचाइन ओ एचाइन तो वहां से मिल जाएगा, और मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या लगाना है, ये फॉर्मूला। यहाँ से अलग से भी क्वेश्चन है इंडिविजुअल से मोलर कंडक्टेंस का, और उसी को यहाँ में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025, मतलब मोलर कंडक्टेंस हो गया, मिथेनोइक एसिड इज 46, तो आपको लैम्डा एम दे दिया 46, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, गिवन एचाइन की वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मेट की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको मोलर कंडक्टेंस दिया है, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मोलर कंडक्टेंस इज गिवन 46.1, एट इंफिनिटिव नहीं दिया था बट हमें एचाइन और फॉर्मेट एन की वैल्यू दिया है, तो अकॉर्डिंग टू कोलाउस लॉ दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटिव मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रख दिया, ये हमें मिल गया अल्फा की वैल्यू, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आ गया 0.114। ठीक है, अब इसी में एक चीज और आपसे पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिसोसिएशन कांस्टेंट K is given as C alpha square upon 1 minus alpha. For very weak electrolytes, 1 minus alpha can be neglected as with comparison to 1. So K equal to C alpha square आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए
ठीक है। सो कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.025, दैट इज द मोलैरिटी। अल्फा आपने निकाल लिया, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हमें क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा, बट माइंडेड उसके लिए हमें अल्फा निकालना होगा, ठीक है। और अल्फा निकालने के लिए आपको ये पैटर्न, ठीक है। चलिए, इसी में एक और टाइप है कि आपको जो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला था कि या तो आपको आयंस की वैल्यू देगा या तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, द कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम क्लोराइड आर वैल्यूज आर गिवन। If the molar conductance of m by 100 solution of ammonium hydroxide is this one, calculate its degree of dissociation and dissociation constant। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ में मोलर कंडक्टेंस भी आपको दिया हुआ था, वहां भी दिया हुआ है, हमें यहाँ भी अल्फा निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, वहां भी निकालना है। बस अंतर है कि यहाँ में हमें HIN की वैल्यू दिया था, बेसिक फॉर्मेट आयन की वैल्यू दिया था, तब हमने इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट निकाला, ठीक है। बट यहाँ में क्या है, इस एग्जांपल में कंडक्टिविटीज आपको किसका दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स का दिया है, आयंस की वैल्यू हमें नहीं दिया है। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि 3 आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, तो वहां से हमें क्या निकालना है, 1 का निकालना है। तो 2 को प्लस करेंगे और 1 को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे पता है आपको, किसका निकालना हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें अमोनियम कॉमन है, चाहिए OH चाहिए, बट NaCl कॉमन नहीं है, इसको हमें माइनस करना होगा, बाकी इन दोनों को प्लस करना होगा। तो यहाँ में कर दिया, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया, ठीक है। इन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए या तो आपको आयंस की वैल्यू देगा, जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, या फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू देगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 9.93 डिवाइडेड बाय 2 38.3, ये आपने निकाला, तो ये आपको मिल गया अल्फा। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से यहाँ से K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात। अब आपको यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो जो मैंने डिस्कस किया उसी पे ये बेस्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, आपको जस्ट हिंट्स देते हैं, मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ अमोनियम आयन एंड Cl माइनस आयंस आर गिवन, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड इज गिवन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, कहां से निकालेंगे, अमोनियम आयन Cl माइनस, ठीक है, जो पीछे डिस्कस किया था HIN और फॉर्मेट के लिए, ओके। मोलर आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। मोलर कंडक्टेंस के लिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, पीछे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस the molar conductivity of 0.002 mole per liter HF hydrofluoric acid is, so lambda m is given, molarity is given, limiting molar conductivity is 405.2, lambda m at infinite dilution is given, so calculate its degree of dissociation and dissociation constant, तो no problem, ठीक है। सो दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में डाल के पका पकाया मैगी है चिपकाना है, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KClH, सो कंडक्टिविटी मतलब ये हमें कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल दीजिए, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए आपको पोटेशियम आयन की वैल्यू दिया है और क्लोराइड आयन की वैल्यू मिसिंग है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन में आपको Cl आयन की वैल्यू यहाँ में नहीं दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो जस्ट टाइपो एरर हो गया, यहाँ में Cl आयन की वैल्यू मिसिंग हो गया है। सो जैसे कुछ अगर Cl आयन की वैल्यू दिया होता तो आपको यहाँ में क्या निकालना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना होता, निकल जाता, क्योंकि आयंस की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टिविटी आपको दिया है, कंडक्टेंस दिया है, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है।
आ जाएगा। तो ये था आपका कुलराउज लॉ पे। इसलिए अगर आप इसको थॉरली अगर एग्जांपल्स को देखिए एंड देन थोड़ा थिंकिंग कि हमें क्या दिया रहेगा, क्या करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आप आराम से कर सकते हैं। तो आयंस की वैल्यू दिया रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछेगा, वो वैल्यू हमें याद नहीं करना है, वो गिवन होगा चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स का देगा, एक का पूछेगा, बस आपको ये देखना है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया कि जो कॉमन नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जो कॉमन है उसको प्लस कर दीजिए। हाँ, कहीं कहीं आपको ऐसे करने में क्या होता है, उसको बैलेंस करना भी पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बट हमारा फंडा वही है कि जो कॉमन है उसको प्लस करना है, जो कॉमन नहीं है उसको माइनस करना है। ठीक है, देन अल्फा निकालने के लिए वहां में भी आपको वही है, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपको कुछ न कुछ दिया रहेगा, या तो आयंस की वैल्यू देगा या इलेक्ट्रोलाइट्स देगा। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दिया रहेगा या फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देन डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना है तो के निकालने के लिए सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन तो आपको दिया ही रहेगा, अल्फा आप खुद निकालेंगे, वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कोलराउज लॉ। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन यहाँ मिसिंग था उसको आपको डिस्कस करेंगे एंड देन तब आगे। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जब कोलराउज लॉ पे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आएगा तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। सो नेक्स्ट में आपको इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो आपको नस्ट इक्वेशंस इसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पे कुछ क्वेश्चंस डेल्टा जी, केसी, ई जीरो सेल। ठीक है, और तब आपको फैराडेज लॉ पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां में आप उसको अपना कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।